بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اگین ان کورس سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پروٹوٹائپنگ کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم ڈسکس کریں گے یو ایم ایل ماڈلنگ کو. یو ایم ایل ماڈلنگ بیسیکلی جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو یوز کیس ڈائیگرام یوز کیس ماڈلنگ کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس کو کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم پورا یو ایم ایل ماڈلنگ کو ہی ڈسکس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اب جس طریقے سے آپ نیکسٹ سیمسٹر میں آئیں گے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کریں گے تو آپ کے لیے جب آپ تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کام کرتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹ بناتے ہیں تو یو ایم ایل کی جو ڈائیگرامز ہیں ہماری یوز کیس ڈائیگرام کلاس ڈائیگرامز وغیرہ یہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام یہ ساری چیزیں ہمارے تھیسس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کو کرنا بہت زیادہ لازم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ لیکچرز جو ہیں اب جو یو ایم ایل کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حامل ہے اور ہم اس کو کرنا ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری ہے. تو خیر یو ایم ایل جو بیسیکلی ہے از پلینگ ہم کہہ سکتے ہیں از پلینگ اے ویری وائٹل رول ان اے سافٹ ویئر انڈسٹری. جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک ڈائیگرام بناتے ہیں اسٹرکچر بناتے ہیں ماڈلنگ کرتے ہیں تو وہی اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یو ایم ایل کی شیپ میں. اب بیسیکلی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اس کورس کے اندر کہ ہم لوگ ماڈلنگ اس لیے کرتے ہیں ڈائیگرام گرافیکل ریپرزنٹیشن اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ ایزیلی سمجھ سکے اور ایک کمپلیکس چیز کو ہم ایک ایزیلی گرافیکل شیپ کے اندر سمجھنا ایزی ہوتا ہے. اور لے مین قسم کا بندہ بھی جو ہے جو نالج نہیں رکھتا ہمارے سافٹ ویئر فیلڈ کا ڈیولپمنٹ کا وہ بھی اس کو ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ کیا پروسیس ہو رہے ہیں کیا سیکوینس چل رہا ہے کیسے ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے یو ایم ایل ڈائیگرام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یو ایم ایل ڈائیگرام کو سمجھنے سے پہلے ہم اگر وہی بات کریں ماڈلنگ کیا ہے کہ ڈائیگرام از اے پارشل گرافیکل ریپرزنٹیشنز آف دا سسٹم. ایک پارشلی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. مطلب کہ اب دیکھیے اگر ہم نے مثال لی تھی برج العرب کی یا برج الخلیفہ ہو گیا یا کوئی بھی ہم اپنی اسٹیٹ بینک کی ایگزامپل لے لیں ایک بڑی کنسٹرکشن سائٹ کو ریپرزینٹ کرنا ایک اس سے پہلے ہم ماڈل بنا دیتے ہیں کہ یہ دکھنے میں ایسا ہوگا یہ کلر اسکیم ہوگی یہ اس کی یہاں پر ڈور ہوگا ونڈو یہاں پر ہوگی یہ انٹرنس ہوگی پارکنگ یہاں ہوگا. تو ہم لوگ ماڈلنگ کے تھرو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے تھرو پورے کے پورے سسٹم کو ایک بہترین انداز میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ ماڈل ہے اور اسی طرح کی لک بنے گی. اگر اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم چینجنگ کر سکتے ہیں ادر نہیں تو کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے تو ویسے ہی بہتر کام آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یو ایم ایل. یو ایم ایل بیسیکلی از اے یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج. ٹھیک ہے ایک ماڈلنگ لینگویج ہے جو کہ یونیفائڈ کر رہی ہے چیزوں کو اور وہ کیا ہے اٹ از این انڈسٹریل اسٹینڈرڈ گرافیکل لینگویج فار اسپیسیفائنگ یعنی کہ یہ پوائنٹ جو ہیں اس میں اسپیسیفائنگ کرنے کے لیے ویژولائزنگ کرنے کے لیے کنسٹرکٹنگ اور ڈاکومنٹنگ آف دا آرٹیفیکٹس آف دا سافٹ ویئر سسٹم. آرٹیفیکٹس مطلب کوئی بھی ڈیزائن آ گیا اس کے انالیسز ہو گئے کچھ بھی اس طرح کی چیزیں. آرٹیفیکٹس کا مطلب ڈیزائن اور انالیسز کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یو ایم ایل ڈائیگرام کی مدد سے اس کی ویژولائزیشن مل جاتی ہے کنسٹرکٹنگ مل جاتی ہے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں اور اس کے سارے جو آرٹیفیکٹس آف دا سسٹم ہیں وہ ہم لوگ اس میں کمپائل کر لیتے ہیں. اب آپ کو ایک اور بھی ایگزامپل دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کمپنی کا جو امپلائی ہے جس نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا ہے سافٹ ویئر کو بنایا ہے اور وہ کسی وجہ سے کمپنی کو لیو کر گیا ہے یا اس کہیں اور سوئچ کر گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یار سافٹ ویئر کے اندر کیا چیز یوز ہوئی ہوئی ہے کیا سسٹم ہے کیسے اس کا جو پروسیس ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ہم لوگ ماڈلنگ کے تھرو اس چیز کو بڑے ایزی وے میں دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور آپ نے بات سنی ہوگی کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ ایک پکچر جو ہے a picture is worth of 1000 words. لائک اگر میں بات کروں کہ جی میرے پاس ایک پین ہے جو پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اور وہ جناب اللہ بلیک کلر کی رائٹنگ لکھتا ہے اور لکھنے میں بہت اچھا ہے یا جو بھی اس طرح کے ہم ایک 1000 ورڈز کا یا کچھ بھی ورڈز جو ہیں 100 آف ورڈز ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی جگہ میں ایک تصویر لکھ لیتا ہوں ایک تصویر لے لیتا ہوں ایک پین کی ایک قلم کی یا ایک وائٹ بورڈ کی کسی بھی چیز کی سینری کی کوئی پہاڑ ہیں ان کی
पिक्चर ले लेते हैं, तो वो पिक्चर ही हमें बता देती है कि हाँ जी अगर मैं इसकी पिक्चर ले लूँ, हाँ जी ये डॉलर का पेन है, इसके ऊपर ड्राई इरेज है, ये रिमूवेबल पेन है, ये कौन से कलर का पेन है। तो यानी कि एक पिक्चर ही जो है वो हमें डिफाइन कर रही है 1000 ऑफ द वर्ड्स, यानी कि हम उस चीज़ से बच गए जो हमने एक्सप्लेन करना है, और हम कोई भी तस्वीर देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या कितना खजाना इसके ऊपर छुपा हुआ है एक ही पिक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो UML डायग्राम है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि एक तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये हमें हेल्प करता है फॉर एक्वायरिंग द ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू जो है वो इसके थ्रू हमें पता लग जाता है। उसके बाद वो सबसे खासियत जो है UML डायग्राम की, सबसे बड़ी खासियत कि वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि नॉन डिपेंडेंट लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। नॉन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, और क्या कहते हैं, कोई भी बंदा इसको इजीली समझ सकता है, कोई भी बंदा इजीली इसको देख सकता है। तो इसके बाद हम लोग UML डायग्राम की बेसिकली टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स इसकी हमारे पास हैं। अच्छा, बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि डिस्टिंग्विश करें हम बिटवीन किसके, UML मॉडलिंग के, कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरह की हमारी जो डायग्राम है वही यूज़ होती जाएगी हर तरह के मॉडल्स में। अब डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनके साथ हम डिफरेंट ही टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये नॉन डिपेंडेंट है टू द एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। अब जैसा कि कोई भी एक शख्स है, वो कोई भी प्रोग्राम बनाता है, उसके बाद कोई मॉडल बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है, तो इट डजंट मीन कि हाँ यार ये वो पाइथन के ऊपर बना रहा है या जावा स्क्रिप्ट के ऊपर है, जावा के ऊपर है, या किसी भी लैंग्वेज को वो यूज़ कर रहा है। तो ये नॉन डिपेंडेंट इसी वजह से है क्योंकि क्या है कि हर बंदा इस चीज़ को समझ सकता है, हर बंदा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यार हाँ हम पाइथन ही यूज़ कर रहे हैं, पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को अब UML डायग्राम ही यूज़ करनी है और ये वाली डायग्राम यूज़ करनी है। कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसके बाद इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। UML मॉडलिंग की जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स होती हैं। एक स्टैटिक होती है, डायनामिक है, और थर्ड वन इज़ द आर्किटेक्चरल। वी आर नॉट गोना डिस्कस आर्किटेक्चरल डायग्राम, इंशाल्लाह अगर वन टाइम तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्टैटिक जो है हमारे पास वो हमें बताती है स्ट्रक्चरल व्यू। स्ट्रक्चरल व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टैटिक। डायनामिक जो है वो हमारा बिहेवियरल व्यू करती है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें कि द व्यू दैट एम्फसाइजेज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन एंड रिलेशन, तो वो हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल डायग्राम। मतलब है कहने का कि हमारी कोई भी ऐसा व्यू मॉडलिंग का जो एम्फसाइज करता हो, जो कंपोज रखता हो, कंपोजिशन ऐसी रखता हो जिसमें ऐसा शामिल हो कि वो स्टैटिक व्यू दिखाती है स्ट्रक्चर का, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है और उसका आपस का रिलेशन क्या है। इसकी बेस्ट मिसाल है हमारे पास जो क्लास डायग्राम। और क्लास डायग्राम ही ऐसी डायग्राम है जो कि स्ट्रक्चरल डायग्राम में, यानी कि स्टैटिक जो टाइप है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्लास डायग्राम। इसी तरीके से डायनामिक है, इट्स व्यू कंप्राइजेज जो है हमारा बाय शोइंग द कोलैबोरेशन। इसमें अब देखिए क्या कि बाय शोइंग द कोलैबोरेशन हो गया किसके दरमियान, अमंग द ऑब्जेक्ट्स, और जो भी उसमें चेंजिंग पैदा हो रही है बिहेवियरल से, जैसा कि नाम से ही जाहिर है उसका बिहेवियर कैसा, उसके अंदर आने वाली चेंजिंग, उसके अंदर एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती है। और इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें, सीक्वेंस डायग्राम है, यानी कि किस सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। एक्टिविटी डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम में बता रहे हैं किस एक्टिविटी पे हैं, किस स्टेट पे हैं। और द थर्ड वन इज़ द स्टेट डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम। तो वो ये सारा हमारा क्या बताता है, उसका बिहेवियरल बताता है। अच्छा, मैं अब आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ, सारी की सारी जो हैं इसकी टाइप्स वो लिख के बता देता हूँ, एक हायरार्की बना के आपको शो करा देता हूँ। ओके जी, तो उसके बाद हम UML की हायरार्की को डिस्कस करते हैं कि UML की हमारे जो टाइप्स हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्लासेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।
तो UML डायग्राम जैसा कि आप डिस्कस कर चुका हूँ कि एक हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है जिसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज द बिहेवियरल, ठीक है, और इसको हम डायनामिक बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज द आर्किटेक्चरल। बेसिकली आर्किटेक्चरल जो मॉडलिंग है उसके अंदर दोनों ही फंक्शंस हैं, दैट्स मीन द स्ट्रक्चरल भी है उसके अंदर, हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड किस्म के जो है सीक्वेंस यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरल भी यूज़ किया जा रहा है एंड द बिहेवियरल भी, ठीक है। तो इसके बाद अभी स्ट्रक्चरल को अगर हम और हायरार्की को देखें, इसकी टाइप्स को देखें, डिस्कस करें, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल जो है डायग्राम है, द सेकंड वन इज़ द क्लास डायग्राम, कंपोजिट डायग्राम, द थर्ड वन इज़ कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड द पैकेज डायग्राम। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे पास, ये क्या आ गई हैं, स्ट्रक्चरल की डायग्राम्स हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो क्लास डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर यूर प्रोजेक्ट, जो थीसिस वगैरह जब हम करते हैं BS लेवल के ऊपर, उसके लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें से क्लास डायग्राम देख लेंगे, जो मेन है, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, डिप्लॉयमेंट, कंपोनेंट वगैरह सॉरी ये देख लेंगे कुछ, और उसके बाद बिहेवियरल जो टाइप है उसके अंदर है एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ केस डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा अहम है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। देन आफ्टर दैट द इंटरेक्शंस एंड द स्टेट डायग्राम। इंटरेक्शंस के अंदर हमारे पास फर्दर एक वो आ जाता है, सीक्वेंस भी है और कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास डायग्राम्स इसके अंदर आ जाती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर तो हम लोगों ने जो हमने डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन से हमें यही पता लगता था कि हम लोगों को स्ट्रक्चरल व्यू नज़र आता है इसके अंदर, उसका आपस का क्या रिलेशन है, कंपोनेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, हम लोग उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जिस तरह से ये सारी उसकी टाइप्स में आ जाती है। जब भी हमें कोई बात करनी हो, टाइप हो हमारी, कि हम लोगों ने उसको स्ट्रक्चरल व्यू को ज़्यादा एलेबरेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो हम लोग इन डायग्राम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम लोग क्लास डायग्राम यूज़ करते हैं, ये हमारी बेहतर है और बेहतरी तौर पर रिप्रेजेंट करती है। देन आफ्टर दिस बिहेवियरल के अंदर ये आपको मैंने बताया था डेफिनेशंस के अंदर, दैट एम्फसाइजेस जो हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की अमंग द कोलैबोरेशंस अमंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और जो आपस में रिलेशंस है, जो उसका स्टेट्स हैं, जो उसकी चेंजेस जो हो रही हैं एक डायग्राम के, एक मॉडल के अंदर प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हम लोग अगर बात करें कि यार बेसिकली हम ये लोग ये जो पढ़ रहे हैं और इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डायग्राम्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि इसका गोल क्या है, UML डायग्राम्स का गोल क्या है। तो वो यही पहली बात तो यही कि एक जो पिक्चर है, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ चल रही है, तो एक पिक्चर की जो वर्थ है इज़ लाइक 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो हम उस 1000 वर्ड्स की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको डिफाइन करने के बजाय, उसको राइट डाउन करने के बजाय, एक तस्वीर ही है, हमें वो सब कुछ खाका सिनेरियो क्रिएट कर देती है, इमेजिनेशंस क्रिएट कर देती है और हमें चीज़ों को समझ आ जाती है कि ये इस चीज़ की है। और एक पिक्चर भी है जिसको हम देखकर दूसरे बंदे को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बेहतर जो सबसे पॉइंट है इसका कि हम लोग एक पिक्चर को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखते हुए पूरा का पूरा अपना सिस्टम, अपना सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं फिर बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग जब आप लोग लास्ट सेमेस्टर में भी आएंगे, जब आप थीसिस राइट डाउन करेंगे तो हम लोग इन डायग्राम्स का यूज़ करेंगे। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है और ये थीसिस है हमारा, तो जो एक्सटर्नल है, जो एग्जामिनर है, वो उसको भी समझाने में ईज़ी हो जाती है कि यार सर हमने ये चीज़ बनाई है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोल्स के अंदर आ जाता है कि इट्स सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सबसे सेकंड नंबर पे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है। इट डिफाइंस सम जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड।
फिर से वही बात कि हर बंदा इसको समझ सकता है, बेशक वो नॉलेज नहीं रखता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर फील्ड की, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लेकिन वो उसको समझ सकता है कि हाँ यार ये बात इसमें हो रही है। अगर मैनुअल बने हुए होते हैं, मैनुअल्स के अंदर भी डायग्राम बने हुए होती है, अगर कोई बंदा पढ़ नहीं सकता उर्दू को, इंग्लिश को, तो वो तस्वीर ही देख लेता है, तस्वीर देने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि ये बटन है, अब इसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये दूसरा बटन है, इसको आपने सर्कुलेट कर देना है, रोटेट कर देना है। इस तरीके से ग्राफिकल पिक्चर की शक्ल्स के अंदर, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हम लोग अपने सिस्टम को गाइडलाइन भी दे सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि सिस्टम कैन बी सॉफ्टवेयर नॉन सॉफ्टवेयर, हाँ इसमें अब ये भी है, ये UML डायग्राम जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम। अगर सॉफ्टवेयर हो तब भी बना सकते हैं, कर सकते हैं, अगर नहीं है तो तब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के दिन का लेक्चर ये यहीं पर ही हम फिनिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सारी जो मेन हमारी पॉइंट्स हैं, हमारी जो उनसे डायग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर यूज़ केस डायग्राम जो आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, यूज़ केस डायग्राम हो गई, और यहाँ से क्लास डायग्राम या ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये कोशिश करूँगा कि सारी ही थोड़ी थोड़ी ब्रीफली जो है वो कर दूँ। थैंक यू सो मच।